ਬਈ ਪ੍ਰਥਮ ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਗੁਣ ਲੈ, ਤੇ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੁਣ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਕਿਹਾ। ਪੌਣ ਗੁਰੂ, ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ, ਧਰਤ ਮਹਤ, ਇਹ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਮਾਂ ਹੈ। ਬਈ ਕਿਉਂ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਮਾਂ ਹੈ? ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਿਗਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਜੀਵਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਖਾਕ ਨੂਰ ਕਰਦਨ ਆਲਮ ਦੁਨੀਆ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਨੂਰ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਾਕ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਨੂਰੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਖਾਕੀ ਹਾਂ, ਐਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਮੁੱਚਾ ਜਗਤ ਖਾਕੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਉਹ ਨੂਰੀ ਨੇ। ਇਕਬਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਸਿਰਫ ਖਾਕੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਿਰਫ ਨੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਿਰਫ ਨੂਰੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸਿਰਫ ਖਾਕੀ ਨਹੀਂ। ਖਾਕ ਨੂਰ ਕਰਦਨ ਆਲਮ ਦੁਨੀਆ ਹੈ। ਤਿਲੰਗ ਮੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਮੁੱਚਾ ਜਗਤ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਖਾਕ ਤੋਂ ਤੇ ਨੂਰ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ। ਖਾਕ ਨੂਰ ਕਰਦਨ ਆਲਮ ਦੁਨੀਆ ਹੈ। ਅਸਮਾਨ ਜਿਵੇਂ ਦਰਖਤ ਆਬ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਖੁਦਾਏ, ਬੰਦੇ ਚਸ਼ਮ ਦੀਦਨ ਫਨਾਏ। ਤੋ ਉਹ ਨੂਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਖਾਕੀ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਮੁਖਤਸਰ ਅਰਜ਼ ਕਰੀਏ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਗੁਣ ਕੀ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਤੀ ਜਨਨੀ ਹੈ, ਹਰ ਜੀਵ ਦੀ ਜਨਨੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਹੈ, ਜੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਜਵਾਨ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਨ ਹੈ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮਾਸ ਦਾ ਲੋਥੜਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਦਾ ਲੋਥੜਾ ਹੈ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਬਿੰਦ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਖੂਨ ਸੀ, ਖੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਖੁਰਾਕ ਸੀ, ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਿੱਟੀ ਸੀ। ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਖੁਰਾਕ ਚਲੀ, ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਖੂਨ ਬਣਿਆ, ਖੂਨ ਤੋਂ ਬਿੰਦ ਬਣਿਆ, ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਮਾਸ ਦਾ ਲੋਥੜਾ ਬਣਿਆ, ਬੱਚਾ ਬਣਿਆ, ਜਵਾਨ ਬਣਿਆ, ਬੁੱਢਾ ਬਣਿਆ, ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ। ਕਬੀਰ ਧੂਲ ਸਕੇਲ ਕੇ ਕੁੜੀਆ ਬਾਂਧੀ ਦੇ, ਦਿਵਸ ਚਾਰ ਕੋ ਪੇਖਣਾ ਅੰਤ ਖੇ ਕੀ ਖੇ। ਪਸਾਰਾ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ, ਉਤਪਤੀ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਮਾਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ? ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ, ਇਤੀ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਮਾਂ। ਕੋਈ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਮਲ ਮੂਤਰ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਮਾਂ ਔਖੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਔਖੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਧਰਤੀ ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਮੁੱਚੇ ਜਗਤ ਦਾ ਗੰਧ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਪੈਦਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਔਰ ਕਿੱਥੇ? ਬੱਚਾ ਸੌਂ ਜਾਏ, ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂ ਜਾਏ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗੋਦ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਧਰਤੀ 'ਚ ਹੀ ਸਮਾ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ। ਐਸੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਥਾਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਧਰਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਹੰਡਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਧਰਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ, ਇति ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਮਾਂ ਹੈ ਇਹ ਧਰਤੀ। तो अब तेज बाय पृथ्वी आकाशा। कबीर कहते पहले तू पृथ्वी का गुण लै कि परोपकारी बिरती, विशाल जिगरा, खिमा की भावना, निर्माणता, ये धरती का गुण है। और गुरु अर्जन देव जी महाराज ने इसका खुलासा किया है गालबन राम कली राग दे।
दयाल देव गोविंद माधव सुन संत ना की रीत। महाराज कहते हैं मेरे कोलों संत जना की रीत सुन, भगत जना की वो किवें रहिंदे ने। मन मेरे राम रो नित नीत, दयाल देव गोविंद माधव सुन संत ना की रीत। बे संतां दी रीति मैथों सुन। की रीत है? आप कहते हैं शस्त्र तीखण काट डारे हो, मन न कीनो रोस, काज को लै सवारे हो, तिल न दीनो दोष। मनुख ने तिखे जिहा शस्त्र दे नाल दरख्त नूं कट दिता और उस कटे हुए दरख्त दी बन गई बेड़ी, नौका। जिसने कटिया सी अज उसने दरिया तो पार होना, तो चरण थले उगा बैसे हो, शर्म न रहो शरीर, महासागर न व्यापे खिने उतरे तीर। और जिन्हें दरिया तो पार होना पहले पैर रखने सन, बेड़ी च उसने पैर रखे, बैठ गया बेड़ी विच। ये बेड़ी की है? कुछ दिन पहले इसने एक दरख्त कटिया सी, तो किसी कारीगर ने उसकी अज बेड़ी बनाई है, कि जिसने कटिया है उन्होंने भी ये दरख्त पार पिया करता है। जिन्हें कटिया उन्होंने भी ये लकड़ किनारे ते लांदी पई है। संत दा जिगरा इतना महान है, जो कट दे, जो टुकड़े टुकड़े कर दे, जो बंद बंद भी कट दे। रसना तो उस वास्ते भी सराप नहीं बई उसकी कुल तबाह होवे, बर्बाद होवे, इस तरह का बचन नहीं। बड़ा जिगर है। चंदन अगर कपूर लेपन, तिस संगे नहीं प्रीत, बिष्टा मूत्र खोद तिल तिल, मन न मनी विपरीत। साहब कहते जिहड़ी जमीन है इहदे ते चंदन का लेप कर दईए, होर फुल फल इनू धरती नू भेंट करिए, अतर सेंट छिड़क दईए, तो ये कोई हंकार विच आके फुलदी नहीं। ते जे इहदे ते गंदगी सुट दईए तो कोई श्राप नहीं देंदी, सदा एक रस। साहब कहते ने धरती वाला गुण भगत कोल आउंदा है। चार बंदियां ने उपमा कर दी तां ठीक, जे चार बंदियां ने निंदा कर दी तां ठीक, किसी ने गंदगी सुट दी तां ठीक, किसी ने चंदन ते सेंट अतर छिड़क दिता ते ठीक। धरती सदा एक रस। जो अगर चंदन वाले नूं ते वर दे देवे ते बिष्टा सुट्टण वाले नूं श्राप दे देवे, वो बंदा व्यापारी है, संत नहीं है, भगत नहीं होते, व्यापारी है। बिष्टा मूत्र खोद तिल तिल, मन न मनी विपरीत। विपरीत उसने नहीं धारण की थी, बेसने गंदगी क्यों सुटी है। तो कबीर कहते ने ऐ बंदे तेरे अंदर निर्माणता इतनी चाहिए, इतना विशाल जिगरा चाहिए, तो दूजे की गल इतनी सहन कर सके। मनुख दूजे की उपमा भी सहन नहीं कर सकता, दूजे की निंदा भी नहीं सहन कर सकता। चार बंदे उपमा करन लग पैण ते बंदा सोचदा वाकई हुण मेरे जैसा कोई नहीं, बंदा भुल जाता। ते चार बंदे निंदा करन लग पैण ते सुकड़ जाता, औखा हो जाता। एक ही हो गया। तो ये जिहड़ी अवस्था है समझ लेना चाहिए, इसने धरती तो कोई गल सीखी नहीं। धरती सदा एक रस है। कबीर कहते हैं धरती का ये गुण अपना ले और फिर तू पानी की पवित्रता ले। पानी अगर ना होवे तो जगत की गंदगी धोनी बड़ी औखी गल है, बहुत औखी गल है। तो सहज कहते निरा तो मिट्टी तो थोड़ी बने, पानी तो भी बने। तो तेरे विच पवित्रता चाहिए। पवित्रता तेरे बोलां च, पवित्रता तेरे किरदार विच, पवित्रता तेरे विचारां च। ये सफाई चाहिए, ये साफ सुथरापन चाहिए। इवें परमात्मा ने तैनू जल दे नाल नहीं बनाया, जिहड़ा पानी नाल बनाया है। इस तो कुछ काम भी ले, इस तो प्रेरणा भी ले। पर निरा पानी नहीं, तू हवा भी है। ते हवा
दा कम की ये सदा गतिमान है, चलती है, रुकती नहीं, फुर्तीली है। ऐ मनुख तू आलसी ना बन, सदा फुर्तीला बन, भज दौड़। समुचा संसार दौड़ रहा है, ते जे ना दौड़िया ते रह जाएगा। साहब कहने दिन रव चले निस सस चले, तार का लख पलोए। ए दिन सूरज चल रहा है, जमीन चल रही है, ग्रह नक्षत्र सूरज चंद तारे सब चल रहे ने, ते ए बंदे इस चलती हुई जमीन के उत्ते जे तू टिकना है, रहना है, तो तेनू भी चलना ही पड़ेगा। हाथ धर के नहीं बैठेगा, रह जाएगा, पछड़ जाएगा। साहब कहने नहीं, गतिमान हो, सब कुछ चल रहा है इत्थे। कहने ने परमात्मा नूं प्राप्त करने वास्ते टिकना पैंदा है, संसार दे विच कुछ प्राप्त करने वास्ते भटकना पैंदा है, चलना पैंदा है। ये दो रस्ते ने अलग। परमात्मा नेचल है, ये जो सब कुछ चल रहा है, धर्म ग्रंथ कहते ने ये सब कुछ जिहड़ा चल रहा है किसी टिके हुए ते चल रहा है। वो टिकिया उन्होंने नेचल के है, टिके हुए, बाकी सब कुछ चल रहा है। ते निहचल की प्राप्ति करनी है ते निहचल हो जा, टिक जा। ते जो भज रहा है, दौड़ रहा है, उहदे चों तू कुछ लभना है ते फिर भज दौड़। भजन दौड़न की जाच बंदे ने सिख लई है, टिकण की जाच भुल गया, बिल्कुल भुल गया। भजना इसनूं आउंदा है, दौड़ना इसनूं आउंदा है। कहंदे बिना दौड़िया संसार नहीं मिलता, बिना टिकिया निरंकार नहीं मिलता। कभी बगौर मुताला करके देखा, भज के निरंकार नहीं मिलेगा। तुसीं आखो भजना है, जिवें भज दौड़ संसार वास्ते, इस तरह की भज दौड़ रब नहीं मिलता। रब ते मिलता है पुरखा चौखड़ा मार के बैठ जा, प्रभु दे गीत गा, वाहिगुरू वाहिगुरू दी धुन अला, ते ये जिहड़ा चल रहा है मन इनू रोक। बस इन्नी गल है, रुकण नाल मिलेगा, चलण नाल नहीं। जगत संसार विच प्राप्त होवेगा चलण नाल, पर निरंकार जिहड़ा है प्राप्त होवेगा नेचल होण नाल, टिकण नाल। तो टिकण दी गल बंदा भुल गया। इस वास्ते देखण विच आउंदा बंदे कोल संसार है, बंदे कोल निरंकार नहीं है, बंदे कोल परमात्मा नहीं है। ये गल मनुख भुल गया।